Namaste Gurukulians, I hope you all are fit and fine. Today we are going to discuss the next topic, that is multiplication of two vector quantities. Up to now you have studied about the addition and subtraction of vector quantities. Okay students, in the multiplication we cannot do the multiply in a way such that we have done in the case of scalar quantity. We can multiply the scalar quantity like this, 2 into 3, it will give 6. But there are some ways by which we can multiply the vector quantities. We cannot multiply the vector quantities like as we done for the scalar quantity. So we have two ways to multiply the vector quantities. First, scalar product, and second, vector product. So scalar product, second vector product. Okay, here I have written dot or scalar. The second name of scalar product is dot product. Scalar product represents that the final result will be a scalar quantity, and dot एक denotation होती है when we multiply the टू वेक्टर क्वांटिटीज, तो उनके बीच जो डिनोशन होगी वो डॉट से हम करेंगे. सेकेंड वे वी हैव क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट. ओके, वेक्टर प्रोडक्ट इट मीन्स व्हेन वी गेट द रिजल्ट आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन देन इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या है? इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. एंड द सेकेंड नेम ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट. अच्छा, क्रॉस एक डिनोशन होती है विच वी विल गिव इन बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज. वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे हम करते हैं. सो टुडे वी विल डू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इन डिटेल. स्टूडेंट्स, इफ यू हैव टू वेक्टर क्वांटिटीज लाइक ए एंड बी एंड दे आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, then dot product or scalar product of vectors a and b is represented as a dot b equal to a into b into cos theta. How? Scalar product. You have two vector quantities, vector a and vector b, and theta is the angle between them. Then dot product or scalar product of vector a and b. So a multiply with b, in between I have drawn a dot, that's why it is dot product. Clear? And it is equal to magnitude of a into magnitude of b into cosine of angle between them. It is a meaning of dot product. So dot product of two vector quantities inclined at angle theta is equal to product of their magnitude and cosine of angle between them. Clear? So before going on the next topic, you should know about how to calculate मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का सेकेंड मीनिंग होता है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, सपोज यू हैव वेक्टर ए लाइक आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. इफ आई आस्क दैट हाउ टू कैलकुलेट द मॉडुलस, मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय मोड ऑफ वेक्टर लाइक दिस, एंड मॉडुलस यू विल कैलकुलेट लाइक एज अंडर रूट. तो पहली टर्म यहां पर क्या आएगी? आई कैप के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर. सेकेंड जे कैप के साथ क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस के कैप, द कोफिशिएंट ऑफ के कैप इज 1, तो 1 का स्क्वायर. देन इट विल बी अंडर रूट 3. क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग a numerical based on simple formula a dot b equal to ab cos theta. Suppose vector a is equal to I cap plus j cap minus
k cap and vector b is equal to I cap plus j cap plus k cap. ठीक है. Then it is also given that angle between them is 30 degree. Then find A dot B. How to find it? We know very well that A dot B is equal to magnitude of A into magnitude of B into cosine of angle between them. So first of all we will calculate the magnitude of A, then magnitude of B, then cosine of angle 30. So firstly magnitude of A, it is also known as modulus of A. It will be equal to under root I cap का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस j कैप का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस k कैप का कोफिशिएंट -1 सो इट विल बी -1 होल स्क्वायर 1 + 1 + 1 3 अंडर रूट 3. Clear? Okay. Magnitude of B is equal to under root. Okay. I cap coefficient 1 तो 1 का स्क्वायर, j cap coefficient 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस k cap coefficient 1 तो 1 का स्क्वायर. Again it will give under root 3. So we have calculated the magnitude of A and B. Now cos theta, here theta is 30 degree. So cos 30 degree, the value is under root 3/2. So A dot B is equal to first magnitude of A, it will under root 3, magnitude of B, it is under root 3, cos 30, it is equal to under root 3/2. So it is equal to under root 3 into under root 3, 3 under root 3/2. So in this way we can calculate the value of A dot B, that is scalar or dot product of two vectors. Clear? यदि आप ध्यान दो थोड़ा तो स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल अलजेब्रा से सोल्व कर सकते हैं. जैसे आपके पास क्वांटिटी 2 है और एक 3 है तो 2 × 3 इट विल गिव 6. But in in the case of vector quantities, you cannot do it. Clear? So now we have second geometrical interpretation of scalar or dot product. Means with the help of geometry, how we will understand the concept of dot or vector, dot or scalar product. Geometrical meaning of dot or scalar product. Okay students, in the previous videos might be have studied about how to make the rectangular components of a vector. कोई भी वेक्टर आपको प्लेन में गिवन है तो उसका कंपोनेंट x के अलोंग कितना है और उसका कंपोनेंट y के अलोंग कितना है. दैट कंपोनेंट्स आर नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर. इफ आई हैव वेक्टर a इन अ प्लेन on x axis, clear, the component will be known as projection of vector a along x axis. Clear? Okay, here we have given vector a and vector b and angle theta is given in between them. Clear? So A dot B, it is equal to AB cos theta. A भी वेक्टर है, B भी वेक्टर है, cos theta भी वेक्टर है. That's why it is a scalar quantity. Clear? Okay, I can write it as A into
बी कॉस थीटा, ठीक है। ओके, नाउ फ्रॉम द फिगर लेट इट इज ओ, क्लियर, इट इज पॉज P, draw a perpendicular PQ, clear, on x-axis, clear. So projection of vector B on x-axis will be equal to B cos theta, क्योंकि कोई भी वेक्टर प्लेन में गिवन है उसका x एक्सिस के लोंग प्रोजेक्शन कितना होता है, B इंटू कोसाइन ऑफ एंगल, क्लियर, ऑन y एक्सिस उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, b sin थीटा। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग x एक्सिस इट इज इक्वल टू b cos थीटा, क्लियर। ओके, इफ आई मल्टीप्लाई a with b cos थीटा देन इट विल गिव a डॉट b, क्लियर। सो कैन आई राइट a इंटू, यहां पर b cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन या कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। सो ए डॉट बी आई कैन राइट ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, क्लियर। तो डॉट प्रोडक्ट का सिंपल मीनिंग समझे, जब दो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में ही मल्टीप्लाई हो उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखो वेक्टर ए अलोंग एक्स है और वेक्टर बी का भी हमने वही कंपोनेंट लिया जो ए की डायरेक्शन में है। व्हेन टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन आर मल्टीप्लाइड देन इट विल गिव डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। सो स्केलर प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या बनता है, पहला वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, क्लियर। और इसको हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, वेक्टर बी सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, क्लियर। और यहां पर आ जाता है बी इंटू ए कोस थीटा। अगेन ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है, बोथ आर सेम, क्योंकि यहां पर भी a इंटू बी इंटू कोस थीटा, यहां पर भी क्या है a इंटू बी इंटू कोस थीटा। सो बस सिंपल मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकल इसका, पहला वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, क्लियर। Okay, now I will give some physical examples of dot product. Okay, if you look at the quantities work, energy, power, these are the scalar quantity, but work is equal to force into displacement. Force and displacement क्या है, both are vector quantity, but work done is a scalar quantity. तो यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच कौन सा प्रोडक्ट आएगा, इट विल बी डॉट प्रोडक्ट, क्लियर। सो एग्जांपल्स, फर्स्ट वर्क, इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ विल गिव अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज वर्क डन। सेकेंड वी हैव इंस्टेंटेनियस पावर. Power is also a scalar quantity, but it is the product of force and velocities, and both are vector quantities. वेक्टर क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी देती है, तो इसका मीनिंग क्या है, उनके बीच कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट. P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. ये बात हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है, देन यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन. तो फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन यू हैव टू सोल्व F डॉट S, एंड फॉर सोल्विंग द पावर यू हैव टू सोल्व F डॉट V. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ properties of dot or
scalar product. These are very important properties because on the basis of these properties you will be able to solve every numerical based on dot product. First, it follows commutative property. Commutative property means A dot B is equal to B dot A. That is, A dot B is equal to B dot A. Clear? Second, it follows the distributive property over addition. वो देखते हैं कैसे. Distributive property over addition, like A dot into B plus C, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एंड इट इज इक्वल टू A डॉट B प्लस, पहले A डॉट B किया फिर प्लस A डॉट C. ओके. थर्ड, स्टूडेंट्स, A dot B is equal to AB cos theta. Clear? Okay. If angle between them is 0 degree, then what will happen? If angle between them is 180 or 90, then what will be the result? देखते हैं कैसे. First, if theta is 0 degree, बेटा 0 degree means क्या है? Both vectors are in the same direction, like this, A and B. Both are in the same direction. Clear? And if you put theta is equal to 0, cos 0 कितना होता है? 1. So A dot B will be equal to AB cos 0, and it will give AB. Clear? मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A डॉट B विल बी इक्वल टू AB इफ एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री. क्लियर? सो इट इज मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू. In the same second we have, if two vectors are anti-parallel, जैसे A वेक्टर ऐसे और B वेक्टर ऐसे, the angle between them is 180 degree. If theta is 180 degree, that is anti-parallel. ठीक है? Okay. If you put theta is 180, cos 180 is equal to -1, so it will give minus AB. Clear? So A dot B is equal to AB cos 180, AB into -1, that is minus AB. Minus AB is the maximum negative magnitude of dot product. Clear? Okay, next, if theta is 90 degree. अच्छा, 90 degree means both are perpendicular, like vector A, vector B, and angle between them is 90 degree. अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में है उनकी मल्टीप्लाई हमें क्या देता है? डॉट प्रोडक्ट. अच्छा, वेक्टर बी का कोई भी कंपोनेंट ए के अलोंग तो नहीं है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0. वो आएगा भी. ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 एंड इट विल गिव 0. क्लियर? क्योंकि बेटा पहले वेक्टर के अलोंग सेकंड वेक्टर का भी कोई कंपोनेंट आना चाहिए, तभी डॉट प्रोडक्ट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी. और यहां पर सेकंड वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन नहीं आएगा. ठीक है? ओके. I am marking very important over it. Clear?
ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इफ आई डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर क्वांटिटीज लाइक ए डॉट ए डॉट ए, दोनों वेक्टर क्या है इक्वल, देन एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री, ठीक है। इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0 डिग्री। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी विल राइट सिंपल ए, इट विल गिव आल्सो सिंपल ए, तो ए इंटू ए का स्क्वायर, कोस 0 क्या था 1, तो इट विल गिव ए स्क्वायर। इट मीन्स जब सेम वेक्टर क्वांटिटी को खुद से ही डॉट प्रोडक्ट करवाया जाए देन इट विल गिव द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है? ओके नेक्स्ट students, in the previous videos you have studied about the orthogonal unit vectors. orthogonal unit vectors का मीनिंग क्या है? जो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जैसे मान लो आई कैप है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, के कैप इट इज अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर? एंड ऑल यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और यूनिट वेक्टर की एक पहचान होती है द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिटी। क्लियर? सो नाउ इफ आई आस्क आई कैप डॉट आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। क्लियर? सो इट विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ आई, देन मैग्नीट्यूड ऑफ आई, दोनों सेम है, देन एंगल विल बी 0। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 इट विल गिव 1। सो आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। इन द सेम वे जे डॉट जे कैप इट विल गिव 1। इन द सेम वे के कैप डॉट के कैप। क्लियर? और ये बात हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज इन द फर्दर coming numericals you will use it. Okay, next F. ये तो मैंने बेटा किया डॉट प्रोडक्ट खुद से ही। इफ आई मेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप विद जे कैप, अच्छा ये अलोंग एक्स है, ये अलोंग वाई है, देन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। सो इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू कॉस 90, एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो इन दिस सेम वे जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90। इन दिस सेम वे के डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी एंगल 90 डिग्री हो किन्हीं दो वेक्टर के बीच, देन द स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0। क्लियर? Now I will give a question in which you have to calculate dot product. Or dot product, how to calculate it? You know very well that a dot b equal to ab cos theta. Suppose if I don't give the angle between them, यदि मैं थीटा आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ, then how you will calculate a dot b? अब ये क्वेश्चन आता है, एंगल गिवन है तो सिंपल है, a इंटू बी इंटू कोस थीटा आ जाएगा। इफ एंगल इज नॉट गिवन देन हाउ यू विल कैलकुलेट इट? देखते हैं कैसे। नेक्स्ट वी हैव a डॉट b वैल्यू इफ एंगल इज नॉट गिवन। क्लियर? अच्छा ए वेक्टर, यदि मैं 3D की बात करूं, आई कैन राइट इट एज ax आई कैप। ax क्या? आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है,
प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। इन बिटवीन देयर इज डॉट इनटू अगेन इफ आई राइट बी वेक्टर, बी वेक्टर को 3D में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी आपको गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, इट इज सिंपली इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स, मीनिंग आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है उसको आई कैप के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देन ए एक्स बी एक्स प्लस जे कैप के साथ जे कैप वाले मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, जे डॉट जे तो 1 ही होता है, देन इट विल गिव ए वाई बी वाई प्लस के कैप का मैग्नीट्यूड यहां पर कितना है, ए जेड, एंड हियर इट इज बी जेड, सो ए जेड इंटू बी जेड, इट इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। प्रूफ में आगे आपको करवाता हूं, इससे पहले एक न्यूमेरिकल आपको बता देता हूं कैसे होता है। सपोज ए वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इट इज गिवन एज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ध्यान से देखो, आई कैप के साथ यहां पर 2 है तो x की वैल्यू 2, जे कैप के साथ 1 तो ए वाई इक्वल टू 1, ए जेड के कैप सो ए जेड विल बी इक्वल टू 1, बी एक्स की वैल्यू 1, बी वाई की वैल्यू -1, बी जेड की वैल्यू 1। नाउ ए डॉट बी, अच्छा इस क्वेश्चन में अब हमें एंगल तो गिवन नहीं है, क्लियर, सो सिंपली 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 1 इंटू 1 1, सो इट इज इक्वल टू 2, क्लियर। देखा जाए तो ये उससे भी शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ ए, देन मॉडुलस ऑफ बी, देन यू हैव टू कैलकुलेट द कोसाइन ऑफ एंगल, देन you have to multiply all quantities, clear, but in this only you have to multiply the respective magnitude of I cap, J cap and K cap, clear, okay। now its proof कि क्वांटिटी आई कैसे है देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, करेंगे क्या हम, सबसे पहले ए एक्स आई कैप को डॉट प्रोडक्ट करो सबके साथ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्लियर। सो यहां पर ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बीच में प्लस है, ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप, क्लियर। नाउ ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप, बी जेड के कैप। इन दिस सेम वे यू विल डू इट फॉर ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप प्लस, नाउ in the same way you will do it for a z k cap, so a z k cap into b x I cap plus a z k cap into b y j cap plus a z k cap into b z k cap। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ax और bx के स्केलर क्वांटिटी है तो बाहर आ जाएंगी, i डॉट आई इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि पिछली प्रॉपर्टीज में आपको बता चुका हूं आई कैप डॉट आई कैप विल गिव 1, सो आई कैप डॉट आई कैप इट विल गिव 1, तो बचा क्या, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप। स्टूडेंट यहां पर देखेंगे आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है 0, सो दिस टर्म इज इक्वल टू 0 प्लस I dot k cap it will also give 0 plus ay j cap dot bx I cap
j dot I, it will give 0 plus j dot j, it will give 1, तो 1 into ay by plus j dot k, again 0 plus k dot I, again it will give 0, k dot j, it will give also 0 plus last term देखना k dot k cap 1, तो 1 into az into bz, it will give az into bz. Then final result we have ax bx plus ay by plus az bz. Clear? In exam no one will ask about the derivation of it. Only you have to remember its result because it is very important. Clear? Okay. The last property we have, how to find the angle between them. cos थीटा को हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ. a डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी cos थीटा. तो ए बी को a डॉट बी के नीचे ले जाओ तो इट विल गिव द वैल्यू ऑफ cos थीटा. फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द एंगल थीटा. लुक, लास्ट a डॉट बी is equal to AB cos theta. So from here we can calculate cos theta as A dot B divided by A into B. These are the magnitude or modulus of vector A and B. So in this way you can calculate the value of cos theta. If I ask about the theta, suppose cos theta की वैल्यू आ जाती है 1/2, तो किस थीटा के लिए cos theta 1/2 देता है आपको 60. So theta will be equal to 60 degree. Clear? Okay, now students, it is all about your concept regarding the dot and scalar product. Now I am doing some numerical based on dot and scalar product, and after that at last I will give some examples which you have to try at your home, and you will send the solution of that question on the WhatsApp group. Students, whenever you will do any numerical based on physics, firstly you should write the respective formulas which you have studied. आप अलग से पोर्शन में वो फॉर्मूले लिख लेंगे एक बार. हमने यहाँ पर किया a डॉट b का कॉन्सेप्ट. सो a डॉट b इज इक्वल टू a b cos theta. So first numerical is that find the angle between the vectors a and b. Find angle between a and b, and values of vector a is I cap plus 2j cap minus k cap, and vector b is minus I cap plus j cap minus 2k cap. ठीक है, दोनों वेक्टर आपको गिवन है. एंगल थीटा यू हैव टू कैलकुलेट. ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हमें पता है. अच्छा, ए डॉट बी निकाल लेते हैं पहले, फिर ए एंड बी भी निकलेगा, फिर यहां से हम क्या निकालेंगे कॉस थीटा. तो सबसे पहले ए डॉट बी, तो सिंपली ए डॉट बी क्या होता है, आप मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप को. यहां पर 1 इंटू -1, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू -2 इट विल गिव 2, 2 प्लस 2 4 -1 इट विल गिव 3. क्लियर. तो सिंपली ए डॉट बी हमने कैसे निकाला, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इट इज इक्वल टू ए वेक्टर ये तो अंडर रूट आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 तो 1 का स्क्वायर, जे कैप का 2 2 का स्क्वायर, के कैप -1 तो -1 का स्क्वायर. 1 प्लस 4 5 प्लस 6 अंडर रूट 6. मॉडुलस ऑफ बी
टेल क्या आएगा, यहाँ पर -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ 1 तो 1 का स्क्वायर विद के कैप देर इज -2 तो प्लस -2 का स्क्वायर। ओके, टेल मी द वैल्यू। -1 का स्क्वायर इट विल गिव 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 1 + 1 + 4 इट विल गिव √6। So we have solved a dot b, a and b. From here we can calculate the cos theta. Cos theta is equal to a dot b divided by a into b. Okay, a dot b 3 magnitude of a √6 magnitude of b √6, तो ये कितना आ जाएगा 6, इट विल गिव 1/2। ओके, किस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए कोस थीटा 1/2 देता है 60, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ए कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2 I cap minus j cap. Prove that they are perpendicular to each other. Okay students, in this question you have to prove it that angle between them is 90 degree. You know very well that a dot b in the case of 90 degree it will give the value 0. यदि आपके पास a dot b की वैल्यू 0 आ गई, it means both vectors are at 90 डिग्री। क्लियर? सो a डॉट b हम निकाल लेते हैं यहाँ से, सिंपल वही फॉर्मूला लगाते हैं ax bx प्लस ay by प्लस az bz। आई कैप के साथ 1, आई कैप के साथ 2, तो इट विल गिव 1 × 2 जे कैप के साथ कौन है 2, जे कैप के साथ -1 तो 2 × -1 -2। यहाँ पर के कैप के साथ कौन है 3, यहाँ पर के कैप के साथ ना तो के कैप है, तो इसका मीनिंग क्या है, के कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 0, तो 3 × 0 इट विल गिव 0। सो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a and b are perpendicular to each other. Clear? Okay, next we have if a plus b is equal to a minus b। ठीक है, ये होता मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर आपको a प्लस बी गिवन है, यहां पर a माइनस बी गिवन है। देन यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B। जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एंगल आपको फाइंड आउट करना है और उसमें वैल्यूज आपको गिवन नहीं है, तो उसका पहला तरीका क्या होता है, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। इफ यू स्क्वायर बोथ साइड देन यू विल गेट A प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी डॉट a प्लस बी। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर होता है, आप क्या लिखते हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। स्केलर है वहां पर तो चल जाएगा, लेकिन जब आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करोगे इन द केस ऑफ वेक्टर, देन यू हैव टू यूज डॉट इन बिटवीन देम। क्लियर? सो हियर a माइनस बी डॉट a माइनस बी। ठीक है, नाउ अब क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट a डॉट a देन a डॉट b, फिर b डॉट a प्लस b डॉट b।
So A dot A, then A dot B plus B dot A plus B dot B. In the same way, A dot A, then A dot minus B, then it will give minus A dot B. Now minus B dot A, तो minus B dot A, minus B dot minus B, तो प्लस B dot B. क्लियर? नाउ A dot A, मैं आपको पहले प्रॉपर्टी करवा चुका हूं, जब भी सेम वेक्टर क्वांटिटी को खुद के ही साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया जाए, then it will give square of its magnitude. So A dot A, it will give magnitude of A square, A dot B as it is B dot A. अच्छा, A dot B and B dot A दोनों इक्वल होते हैं, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? A dot B, A dot B पहले से पढ़ा है, तो ये क्या आ जाएगा? 2A dot B, B dot B इक्वल टू B स्क्वायर इक्वल टू A डॉट ए, अगेन A का स्क्वायर, ठीक है, A डॉट B B डॉट ए, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको भी A डॉट B, यहां पर भी A डॉट B है, यहां पर भी A डॉट B आएगा, तो ये क्या रिजल्ट देगा? 2A डॉट B प्लस B स्क्वायर. क्लियर? नाउ यहां पर A स्क्वायर है, यहां पर A स्क्वायर है, कैंसल आउट. यहां पर B स्क्वायर है, यहां पर B स्क्वायर है, इट विल गेट कैंसल आउट. यहां पर क्या बचा? 2AB, और यहां पर क्या बचा? माइनस 2AB. जब ये टर्म इधर आएगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्लस. सो 2A डॉट B प्लस 2A डॉट B इज इक्वल टू 0. क्योंकि बेटा ये कट गया, ये कट गया, ये वैल्यू इधर आएगी, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 0. सो यहां पर आ जाएगा 4A डॉट B इक्वल टू 0, दैट इज A डॉट B इक्वल टू 0. और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? व्हेन द एंगल बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर? देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर? Now I am writing the some numericals which you have to solve in your fair notebook. First, if unit vectors A cap and B cap are inclined at angle theta, then prove that A cap minus B cap is equal to 2 sin theta by 2. Clear? Second, if vector A is equal to I cap plus J cap plus K cap and vector B I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दोनों सेम वेक्टर गिवन है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी. Third,
prove that A vector 2i cap minus 3j cap minus k cap and b vector is equal to minus 6i cap plus 9j cap plus 3k cap. These are parallel. So these three questions you have to attempt, and you will do in your fair notebook, and you will send the PDF of that solutions on the WhatsApp group. Clear? So students, it is all about your concept regarding the dot or scalar product. In the next video we will do the concept of vector or cross product. वेक्टर प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कि जो नेट क्वांटिटी आएगी, ये रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी, इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू.